नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की करते हैं। इसमें आरोपों से घिरी उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। आज उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए इस मामले से जुड़े तथ्य सामने रखे। सुशांत के पिता ने जो आरोप उन पर लगाए हैं उनके बारे में रिया का क्या कहना है, सबसे पहले आप ये सुनिए। Sushant Singh Rajput's father today said you murdered his son. Your reaction to that? I mean, it's extremely hurtful that someone who's going through a loss this big, as am I, does not understand what this could be doing to me. I loved his son. And it's just beyond me to understand that, is there no humanity? I looked after his son. At least have the humanity. If you don't like me as his girlfriend, at least have the humanity that now that he's passed, respect his love for me, if not mine for him. रिया ने अपने परिवार को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आतंकियों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि मेरे पिता ने 25 साल सेना में रहकर देश की सेवा की। It's really difficult. Me and my entire family are going through scrutiny every day. Today there was a mob at my doorstep. My father was harassed, he was touched, he was hit. My watchman was beaten up in my building, inside the premises. They are not just harassing me, but the entire people living in the society. Tomorrow they might ask us to leave. What are you doing to this family? I would like to ask everybody this question. What are you doing to this family? We are being grilled. We are being part of every investigation. We are doing all our duties as law-abiding citizens. But why can't you wait for the result to come? And if you don't have faith in the legal system, you should leave India. Because I do. And my family does. And that's why we're still alive, or we would have committed suicide too. With the kind of allegations and the accusations, treating me worse than a terrorist. My father served the nation for 25 years as an army officer. And you are treating this family like we are terrorists, when all we did was love a boy. जब रिया से पूछा गया कि वो इतने दिनों तक चुप क्यों थी और इतने वक्त बाद उन्होंने क्यों मीडिया के सामने अपनी बात रखने की सोची, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं सुशांत के सम्मान के लिए चुप थी। Riya, already you've seen the reactions to your interviews have come that your interviews are PR interviews, they're soft interviews. The fact is this interview is going live right now. We're not editing anything. But the allegation being that you're using this for public sympathy. Why have you decided to speak out today? Do you think you're going to be arrested tomorrow? No, I don't think I'm going to be arrested tomorrow because I have not done anything worthy of being arrested. But I feel the need to speak because my mother is now on the verge of a mental breakdown completely. She might have to be moved to the hospital. My family is breaking. My father is being pushed around and almost physically and mentally lynched at. I have to do this for them. What about my family? What about what we are going through? And I didn't speak for so many days out of respect for Sushant. And what was being said was so absurd that it irked me, it hurt me, that they are destroying his memory. They're destroying him. Have respect for the person who's gone at least fact check. जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन का जिक्र करते हुए रिया ने बताया कि जब उन्हें यह खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गई थी। And I heard from a common friend that such and such rumor is going on about him, and if you're with him, they assume that I was with him. Please tell him to put out a statement and squash this rumor. And that's when I realized that there's probably something weird here. And then soon later it was confirmed that it's true. And thereafter I was completely shattered. I was completely broken. My life has completely been taken away from me. The love of my life has been completely taken away from me. The health and the mental health of my family is completely destroyed. I mean, it just couldn't be worse for me. And the only thing that's giving me strength to go on is that I'm speaking the truth, and is that
probably Sushant is here overlooking and helping me to get the truth out. तो रिया चक्रवर्ती को आपने सुना, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब एनडीटीवी पर दिया। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। जेईई और नीट की परीक्षा, 7 से ज्यादा राज्यों और हजारों छात्रों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार नीट और जेईई परीक्षाएं करवाने के फैसले पर अडिग है। आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्रों का साल बचाने के लिए परीक्षाएं जरूरी हैं। हालांकि कई मुख्यमंत्री इसके खिलाफ हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इम्तिहानों की मार गरीब बच्चों पर पड़ेगी। कोरोना काल में नीट और जेईई कराने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लखनऊ में लाठियां बरसीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि अब नीट और जेईई की परीक्षाओं को नहीं टाला जाएगा। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि बहुत चौकसी बरती जा रही है और छात्र को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनटीए ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं, जो उसने अभी जारी किया है एसओपी, वो उसमें बेहतर गाइडलाइन दी है, बहुत सशक्त गाइडलाइन दी है। बाकायदा आप निश्चिंत होकर के और उस परीक्षा को आप दीजिए। मुझे भरोसा है कि आपका एक वर्ष खराब नहीं जाएगा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अभी इम्तिहान हुए तो गरीब छात्रों पर इसकी मार पड़ेगी। जिनके पास कोई गाड़ी है या कुछ चीज है वो तो पहुंच जाएंगे। जो गांव में कहाँ बैठे हैं, यहाँ पहाड़, यहाँ ये देखो शिवालिक है मेरे साथ, शिवालिक के ऊपर कोई गांव है, उसमें से कहाँ से जाएंगे? रोड डेली आएंगे, डेली जाएंगे पैदल। एंड मेरे पंजाब में तो हर गांव में, ये पहाड़ों को छोड़कर हर गांव में मेरी सड़कें बनी हुई हैं, मेरे बसें चल रही हैं। कहाँ है बाकी हिंदुस्तान में? झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ कैसे करेंगे लोग? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो फोन कर प्रधानमंत्री मोदी से परीक्षाएं टालने की मांग की। कांग्रेस भी शुक्रवार को देश भर में नीट और जेईई परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने को लेकर सड़कों पर उतरेगी। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी 11 बजे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों की भी तरफ से जो केंद्र के सरकार के जो कार्यालय हैं उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे कि केंद्र सरकार पुनर्विचार करे और इस एग्जाम को स्थगित करे कोरोना संक्रमण को देखते हुए। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब कुछ ज्यादा रह नहीं जाता छात्रों के पास। उन्हें परीक्षाएं देनी होगी, चाहे वो बाढ़ में हो या फिर कंटेनमेंट जोन में हो। लेकिन कांग्रेस की सरकारें पंजाब और राजस्थान का कहना है कि वो जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर करेंगी, लेकिन समय बहुत कम है और छात्रों के पास दबाव ज़्यादा है क्योंकि उनको तैयारी भी करनी है और कोरोना के डर से भी खुद को बचाना है। दिल्ली में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आर्थिक मंदी की वजह से घाटे के चलते 2 सगे भाइयों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। दोनों भाइयों पर लाखों रुपए का कर्ज था और परिवार का आरोप है कि प्राइवेट फाइनेंसर ने इतना परेशान किया कि इन दोनों भाइयों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम हाउस में अपने 2 बड़े भाइयों की लाश लेने के लिए नमित अब अकेले रह गए हैं। नमित एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जबकि अंकित और अर्पित दोनों भाई चांदनी चौक के इसी दुकान में ज्वेलरी का काम करते थे। बीते साल भर से काम मंदा हो गया था। इस दौरान प्राइवेट फाइनेंसरों से लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। लॉकडाउन में दुकान बंद और भारी भरकम ब्याज देने का दबाव ये दोनों भाई सहन नहीं कर पाए और बुधवार देर शाम एक साथ उन्होंने खुदकुशी कर ली। ज्वेलरी का काम करते थे दोनों भाई और मार्केट से कुछ पैसा लोगों से लिया था काम को करने के लिए आगे, और वो लोग इनको मारते थे, आके मारते थे। कुछ ने 2 दिन पहले किसी ने फिनाइल ला के भी दिया इनको कि फिनाइल पी के मर जाओ, पैसा नहीं दे सकते तो। उनको टॉर्चर करा जाता था। बाउंसर भेजते थे रोज इनको मारने के लिए। 15% ब्याज मांगते थे इन लोगों से। मैं बस मीडिया से यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को रोका जाए
कोई और हादसा ना हो किसी के साथ। हालांकि दोनों भाइयों ने सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण आर्थिक लिखा है, किसी के नाम का जिक्र नहीं है। तो ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद एक घटना है। किसी को भी इस तरीके से सुसाइड नहीं करना चाहिए। पुलिस का ये कहना है कि अगर परिवार वाले किसी विशेष व्यक्ति के नाम से उनको शिकायत देते हैं तो पुलिस उस पर जांच करेगी। बिजनेस हब के तौर पर मशहूर चांदनी चौक के कारोबारी इस घटना के बाद सदमे में हैं। व्यापारियों के संगठन कैट का मानना है कि लॉकडाउन के चलते देश के खुदरा कारोबारियों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शायद इसी के चलते सुसाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। 4-4 महीने बाद दुकानें खुली हैं, लोगों की देनदारियाँ, लोगों के व्यापार एकदम ज़ीरो सेल है, तो बहुत प्रेशर है कारोबारी। और इस टाइम बहुत गंभीर समस्या कारोबारी चल रहा है। इतनी समस्या है कि बिजली के बिल 4-4, 5-5 महीने के प्रोविजनल बिल आ रहे हैं और कमाई कुछ नहीं है, ज़ीरो कमाई है। बैंक के पैसे हैं, EMIs हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव हैं। घर के एक्सपेंसिव के अलावा और बहुत एक्सपेंसिव हैं। लॉकडाउन के चलते आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। सुसाइड प्रिवेंशन इंडिया फाउंडेशन की स्टडी में पता चला है कि मानसिक तौर पर 73% लोगों के बीमारी के पीछे आर्थिक अनिश्चितता है। नई दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन और हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए बच्चों के लिए कहां शुरू हुई मोहल्ला पाठशाला। हरियाणा के नूह में 70% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है। अब स्थानीय प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की है। इसके तहत युवा ग्रेजुएट सामुदायिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कक्षाएं छतों या खुली जगहों पर लगती हैं ताकि सामाजिक दूरी भी बनी रहे। 100 से ज्यादा गांवों में ऐसी पाठशालाएं चल रही हैं। सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट आप देखिए। 8 साल का हितेश आखिरकार मोहल्ला पाठशाला में पढ़ने लगा है। 4 महीने ऑनलाइन क्लास की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी रही। ये हरियाणा के नूह जिले के रहना गांव की बात है। वो जिले के उन 70,000 या 70% बच्चों में है जो स्मार्टफोन या इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं सके। ये अंतर घटाने के लिए प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला शुरू करवाई। स्थानीय युवक शिक्षा दूत बनाए गए हैं जो बच्चों को बरामदों में, छतों में या खुली जगहों पर पढ़ा रहे हैं। एक बैच में 15 बच्चों की इजाजत है और सामाजिक दूरी का निर्वाह जरूरी है। बच्चे और अभिभावक दोनों इससे राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे घर में एक ही स्मार्टफोन था जिससे मैं बच्चों की पढ़ाई क्लास से ठीक से नहीं लगते थे, क्योंकि 3 बच्चे और भी जो उनसे क्लास लेते थे। लेकिन जिस दिन से मोहल्ला पाठशाला खुली है उस दिन से एक बेटे की पढ़ाई खूब अच्छी तरह हो रही है और उससे उसका जो घर का वो है पूरा काम वाम बिल्कुल सही हो रहा है। पढ़ाई भी बिल्कुल सही चल रही है और घर का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। मैं मोहल्ला पाठशाला से बहुत कुछ मदद मिल रही है फिलहाल, लेकिन उससे पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2-3 महीने तो पापा घर पे ही रहते थे तो ऑनलाइन क्लास हमें खूब अच्छी तरह लगती थी। लेकिन अब फिलहाल पापा काम पर जाते हैं तो अब अटेंड नहीं कर पाते ऑनलाइन, इसीलिए अब मोहल्ला पाठशाला चली। इससे हमें बहुत कुछ फायदा हो रहा है और इससे हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आ रही है। 2018 में नीति आयोग ने नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया था। 1ली से 8वीं कक्षा के बीच जिले के 1 लाख छात्र हैं। इनमें से 70,000 छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे। मोहल्ला पाठशालाओं के तहत अब तक 4,300 बच्चों को जोड़ा गया है। 125 गांव में ये पाठशालाएं 246 कार्यकर्ता चला रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि आने वाले हफ्तों में कम से कम 50,000 बच्चों को इससे जोड़ा जा सके। शुरू में कोशिश सिर्फ पेशेवर शिक्षकों को जोड़ने की थी, लेकिन शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों के आधे पद खाली हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की मदद ली गई। उमरा गांव में रहने वाली 20 साल की कामिला कार्यकर्ताओं में है।
उसने न सिर्फ शिक्षक का अनुभव हासिल किया बल्कि बहुत सारी लड़कियों का भविष्य भी बचाया। अभी जो हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी वजह ये है तो मेरे गांव का जो पढ़ाई का माहौल है तो वो थोड़ा सा वैसा है कि उसमें लड़कियां हैं जो वो कम पढ़ती हैं। कोई 7वीं तक जाती है, 8वीं तक जाती है, मोस्टली 10वीं से आगे तो बहुत ही कम लड़कियां जाती हैं। तो मैंने सोचा मैं घर पे हूँ, खाली हूँ और वैसे भी मुझे इस फील्ड से बेनिफिट होने वाला है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने गांव के बच्चों को बिठा के पढ़ाऊँ, उससे बच्चों का भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। ये एक अच्छी शुरुआत लगती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि फिलहाल बस बुनियादी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बेहतर ट्रेनिंग चाहिए। अधिकारियों का कहना है वो इस पर भी काम कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में हम ज़्यादा जोर देंगे कि डेली एक पेज बच्चा अपनी किताब से लिख ले, कम से कम रीडिंग में हॉबिट होगी उसको, इंग्लिश लिखने का। वो जो हमारा डायरेक्टरेट से आता है, शिक्षा विभाग जो हमें देता है, रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाता है हमारे पास, क्लास वाइज है टाइम टेबल उसके अंदर, वो हम उन शिक्षा दूत को भेजेंगे ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट तब हो। अभी तो फिलहाल क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है हमारी, शुरुआत तो की हमने किसी तरह बच्चे जोड़ने की है, अभी तक तो क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट करेंगे साथ साथ। इन मोहल्ला पाठशालाओं की वजह से संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, पर सरकार के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखे और बच्चों की सुरक्षा का भी। नू हरियाणा से कैमरा पर्सन सुशील राठी और ताहिर हुसैन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।